Good morning, children. You need to sit with your notebooks, and today we are going to do indirect speech. So you will write down the rules for changing direct speech into indirect speech. You can go slow. Okay. So first rule is that as I speak, you can write. In the indirect speech, no inverted commas are used. So when somebody is speaking, the sentence is given in inverted commas. But when we change it to indirect, no inverted commas are used. So that is your first rule. लिख लिया. Second, the conjunctions that, if, whether are generally used after reporting verb. So these are the conjunctions which are used to join the sentence after the reporting verb. We will understand what is the reporting verb. The first word of the reported speech begins with a capital letter. The tense of the reporting verb is never changed. The reporting verb changes according to sense. It may be told, asked, inquired. ठीक है? तो पास्ट टेंस में ज़्यादातर स्टोरीज में होता है. इसको सेड का टोल्ड कर सकते हो, क्वेश्चन हो तो आस्क्ड कर सकते हो, या इंक्वायर्ड भी लिख सकते हो. सो दैट इज योर रिपोर्टिंग वर्ब. नाउ रूल्स फॉर चेंजिंग प्रोनाउंस. ये 4 लिख लिए तुमने. सो पहला क्या था, इनडायरेक्ट स्पीच में नो इन्वर्टेड कॉमास आर यूज्ड. कंजंक्शंस लाइक इफ, वेदर आर जनरली यूज्ड and they come after reporting verb. First word of reported speech begins with a capital letter. Tense of the reporting verb remains the same, means it is never changed. Reporting verb changes according to sense, that is told, asked, inquired, etc. Asked and inquired for question sentence. Next, इसको हम 1 बना देते हैं. So this is going to be your rule number 2 for changing pronouns. How we are going to change the pronouns? The first person pronouns, I, me, my, we, us, our, these are all first person pronouns. So they will change according to the subject of the reporting verb. The pronouns of the second person, you, your, yourself, in the reporting speech change according to the object of the reporting verb. Okay. The pronouns of the second person will change according to the reported speech according to the object. The pronouns of the third person do not change. Example देखेंगे. He said I like the book. तो here he is second person, ये first person नहीं है. तो second person में he का क्या रहेगा, I है ना अभी. When he is speaking he is saying I like the book. तो I will go according to he. तो यहाँ पे क्या आएगा, he said that he liked the book. Okay. He said to me. First one you understood. It is the second person. So I का he हो जाएगा. He said to me, do you like the book? अभी ये क्वेश्चन है, इसलिए हमने कौन सा रिपोर्टिंग वर्ब लिया है, asked. He asked me. ये सेम ही रहेगा. He asked me if. अभी ये क्या है, क्वेश्चन सेंटेंस बिगिनिंग विथ ऑक्सिलरी वर्ब. WH वाला क्वेश्चन सेंटेंस होगा तो WH ही जॉइनिंग वर्ड आता है. बट ये कैसा है, ऑक्सिलरी है, डू इज ऑक्सिलरी वर्ब, इसलिए इफ आया. एंड व्हाट यू आर सेइंग, ही आस्क्ड इफ आई, ही आस्क्ड मी है, तो ये फर्स्ट पर्सन. मी इज व्हाट, फर्स्ट पर्सन. तो फिर यहाँ पे जो फर्स्ट पर्सन के लिए उसने यू यूज किया वो आई हो जाएगा. ये वाला जो ही आस्क्ड मी है वो मुझसे बात कर रहा है, इसलिए मुझसे बात कर रहा है, इसलिए यू का आई हो गया. राइट. ही सेड ही लाइक्स द बुक. ही सेड दैट ही लाइक्ड द बुक. एंड हमेशा व्हाट हैपेंस, एवरीथिंग इज चेंज इनटू पास्ट टेंस. बिकॉज ओनली यूनिवर्सल ट्रूथ्स are not changed into past tense, otherwise all the verbs are changed into past tense. like का liked हो गया वैसे. यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन से बात हो रही है इसलिए यू का आई हो गया. Now we are going to look at the
changes in words expressing nearness, time and auxiliary. So this will become that. There now becomes then. There becomes those. Here becomes there. Today becomes that day. Tomorrow becomes next day. Yesterday becomes the previous day. Last night becomes the previous night. Can का हो जाएगा could. ये there वाला समझ में आ गया. Bring me the things. There. Bring me those things. ऐसे चेंज होता है. Last night, previous night, can, could, may, might, past tense हो रहा है सबका. Shall, should, will, would. Go, before, ago. Ago means थोड़ा टाइम पहले, तो उसका होगा before. Just, then, come का हो जाएगा go. अभी टेंसेस में क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस मीन्स राइट का हो जाएगा रोट. प्रेजेंट प्रोग्रेसिव मतलब जो आईएनजी वाले होते हैं, आई एम राइटिंग, ही इज राइटिंग, दे आर राइटिंग, वो क्या होगा? आई वॉज राइटिंग, दे वर राइटिंग, जो कंटिन्यूस है. प्रेजेंट परफेक्ट हैज़ रिटन का हो जाएगा हैड रिटन इन इनडायरेक्ट. सिंपल में अगर रोट है तो भी उसका पास्ट परफेक्ट हो जाएगा सिंपल पास्ट का, रोट का हैड रिटन हो जाएगा. पास्ट प्रोग्रेसिव पास्ट वाला जो कंटिन्यूस टेंस है वॉज वेर राइटिंग का हो जाएगा हैड बीन राइटिंग. सो दिस यू हैव टू कॉपी डाउन प्रॉपरली. यस एंड यू हैव टू रिमेंबर इट. ये सब प्रैक्टिस से ही आएगा बट यू फर्स्ट राइट डाउन द रूल्स. If direct speech expresses a historical fact or a universal truth, then only the tense will not change. जैसे he said honesty is the best policy. He said that. अभी simple sentence में that is the conjunction. I have taught you in 9th standard also. ये simple sentence है तो that conjunction आएगा. He said that honesty अभी is का is रहेगा क्योंकि universal truth. He said sun rises in the east. Again universal truth. So he said that sun rises in the east. He said, she said God is omnipresent. God सब जगह पे है. So she said that God is omnipresent. The teacher said the first world war started in 1994. Teacher said that the first world war started in 1914. Okay. अभी रिपोर्टिंग वर्ब का हम देखेंगे. रिप्लाई हो तो रिप्लाइड कह सकते हैं, रिमार्क कह सकते हैं. ठीक है. चेंजिंग स्टेटमेंट्स इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू इज चेंज टू टोल्ड, रिप्लाइड, रिमार्क. रिपोर्टिंग वर्ड इज नॉट फॉलोड बाय एनी ऑब्जेक्ट, इट इज नॉट चेंज्ड. द इन्वर्टेड कॉमास आर रिमूव्ड. द कंजंक्शन दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट द रिपोर्टिंग क्लॉज विद द रिपोर्टेड स्पीच. सो उसके लिए क्या रूल्स है दैट वी आर गोइंग टू सी. द रूल्स फॉर द चेंज इन प्रोनाउंस टेंसेस आर फॉलोड. देखो रामू सेड आई सॉ द लायन इन द फॉरेस्ट. तो ये क्या है? सिंपल सेंटेंस है. कंजंक्शन विल बी दैट. रामू सेड दैट. अभी सॉ का क्या हो गया? हैड सीन अ लायन इन द फॉरेस्ट. सतीश सेड टू मी. अभी सेड टू मी है फर्स्ट पर्सन. आई एम वेरी हैप्पी हियर. अभी लेकिन वो मुझसे बात करे लेकिन खुद के बारे में बात करे कि वो यहाँ पे खुश है. Satish told me that he was very happy there. He said, I can do this work. He said that he could do that work. Renu said to me, I was washing the clothes. Renu बोल रही कि वो, I यहाँ पे रेनू के लिए कि वो कपड़े धो रही थी. तो रेनू told me that she had been. Was washing का क्या हो गया? Had been washing the clothes. She said I am not well. She said that she was not well. He said to Sita, I have passed the test. He told Sita that he had passed the test. I said to my friend, he has been working very hard. Perfect आ गया. Perfect continuous. So I told my friend that he had been working very hard. My friend said to me, I shall go to Delhi tomorrow. My friend told me that he would go to Delhi. The tomorrow को क्या हो गया? Next day. I said I agreed to what he said. I said that I agreed to what he had said. The student said to the teacher, I am sorry that I am late. The student told the teacher that he was. Am का क्या हो गया? Was.
सॉरी दैट ही, एम का अगेन वॉज लेट। ठीक है, ये सिंपल का हो गया। अभी इंट्रोगेटिव में हम देखेंगे। इंट्रोगेटिव के लिए लास्ट ईयर ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू कि इंट्रोगेटिव में WH क्वेश्चन होगा तो WH कंजंक्शन रहेगा, और अगर क्वेश्चन तुम्हारा ऑक्सिलरी वर्ब वाला होगा तो द कंजंक्शन विल बी इफ। देखते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब से इज चेंज इनटू आस्क और इंक्वायर्ड। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज चेंज इनटू स्टेटमेंट। क्वेश्चन फिर क्वेश्चन नहीं रहता, क्वेश्चन मार्क नहीं देने का है, तो सब्जेक्ट बिफोर द वर्ब, वर्ब को पीछे करने का। क्वेश्चन में वर्ब आगे होता है, सेंटेंस में हम वर्ब को पीछे करेंगे और सब्जेक्ट को हम आगे लेंगे। If interrogative sentence has a WH word, who, when, where, how, why, then the WH word is used as a conjunction. If the interrogative sentence is yes, no answer types of sentence, then verbs are, was, were, told, did, shall, then if or whether is used as a conjunction. Question अगर auxiliary verb से begin होता है, जैसे कि are, ये am है, ये W नहीं है, ये क्या होना चाहिए? am, are, was, were, तो क्या होगा? तो कंजंक्शन के लिए if यूज करेंगे। The auxiliary do, does, did in a positive question in the reported speech are dropped. ये क्वेश्चन वाले में से ये निकल जाते हैं। The conjunction that is not used after the reporting clause, that नहीं आता, क्वेश्चन सेंटेंस में that आता नहीं है, ये बता रहे। I said to him, where are you going? I asked him where he was going. He said to me, will you go there? अभी will WH नहीं है, तो अभी if आएगा। He asked me if I would go there. My friend said to Deepak, have you ever been to Agra? My friend asked Deepak. Again देखो WH क्वेश्चन नहीं है, who, where, what नहीं है, तो क्या होगा? If he had ever been to Agra, फिर क्वेश्चन मार्क निकल जाता है, फुल स्टॉप आता है। My friend asked if I asked to him, did you enjoy the movie? Again इसको ऑक्सिलरी बोलते हैं, WH नहीं है, तो if आएगा। I asked him if he had enjoyed the movie. I asked her, do you know him? I asked her if she knew him. देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो है do निकल जाता है, did निकल जाता है, ये बता रहे वो लोग। He said to me, will you listen to me? He asked me if I would listen to him. अभी क्या हो गया, क्वेश्चन में वर्ब आगे होता है, सब्जेक्ट पीछे होता है, और जब इनडायरेक्ट करते हैं तो हम इसको आगे लेके आते हैं, और उसका आई हो गया यू का, और ये विल का वुड होके वो पीछे चला गया। He asked to me, will you listen to me? तो अभी यू को हमने आगे आया, और मी है वो मुझसे बात कर रहा है फर्स्ट पर्सन से, इसलिए यू का आई हो गया। If I would listen to him. I asked to him, when will you go there? अभी WH है तो WH कंजंक्शन, अब if नहीं आएगा। I asked him when he would go there, क्वेश्चन मार्क निकल जाएगा। He said to me, how is your father? He asked me how my father was. देखो फादर आगे आ गया और मी से बात कर रहा है, इसलिए माई, यूअर का माई हो गया, फर्स्ट पर्सन से बात कर रहा है, इसलिए हाउ माई फादर, और ईज का पीछे जाके वॉज हो गया, सब्जेक्ट को आगे जाने का और वर्ब को पीछे लेने का। I said to him, are you happy? I asked him if he was happy. Again you, अभी ये him से बात हो रही है, इसे you का ही हो गया, R का was होके वो पीछे चला गया, क्वेश्चन मार्क निकल गया। हमेशा वर्ब को पीछे करने का और सब्जेक्ट को आगे लाने का when you are doing changing interrogative to indirect. He said to her, do you like apples? अभी do निकल के if आ जाएगा। He asked her if she liked apples. Her है, इसे she हो। अभी कमांड्स देखेंगे। कमांड्स जो ऑर्डर्स होते हैं उसके लिए इम्पेरेटिव सेंटेंस बोले जाते हैं, तो फॉर दैट ऑर्डर, टेल, अलाउ, रिक्वेस्ट भी उसको इम्पेरेटिव ही बोला जाता है। द इम्पेरेटिव मूड इज चेंज इनटू इन्फिनेटिव मूड, मतलब टू वाला वर्ब आएगा। इन्फिनेटिव मीन्स टू वाला वर्ब, बाय पुटिंग टू बिफोर द वर्ब। In case of negative auxiliary, do is dropped and to is placed after not, not to. Negative हो तो not to और positive हो तो to. She said to me, open the window. She ordered या requested me to open the window. The captain said to the soldiers, attack the enemy.
द कैप्टन कमांडेड द सोल्जर्स टू अटैक द एनिमी। यहाँ पे इन्फिनेटिव है इसलिए ईडी नहीं लगेगा। आई सेड टू हिम लीव दिस प्लेस एट वंस। आई टोल्ड हिम या आई ऑर्डर्ड हिम टू लीव दैट प्लेस एट वंस। दिस का तो दैट होगा ही। The teacher said to the students, listen to me attentively. The teacher asked the students to listen to him attentively. Ring the bell तो क्या होगा? The principal ordered the peon to ring the bell. इस तरीके से सब लोग तुम ये लिख लेना, ये easy है। I said to him, please bring me a glass of water. I requested him to bring me a glass of water. अभी देखो नेगेटिव आएगा। lend me your book में भी नेगेटिव आया नहीं। तो ये यहाँ तक कर लो। इन द जूम लेक्चर वी आर गोइंग टू डू प्रैक्टिस ऑफ द नेगेटिव। इसमें से एक अभी मैं ओरली बता देती हूँ, इसको हम उल्टा करके लेते हैं। जैसे ये बोलेगा आई सेड टू हिम प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो आई सेड टू हिम प्लीज डोंट ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो क्या करेंगे? आई रिक्वेस्टेड हिम नॉट टू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अगर डोंट होगा तो नॉट टू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। किसी का भी नेगेटिव करके देख लो। अगर ये देखते हैं ये अटैक द एनिमी के बदले हम बोल देंगे कि डोंट अटैक द एनिमी। ऐसे ऑर्डर हो तो द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स डोंट अटैक द एनिमी। तो क्या हो गया? द कैप्टन कमांडेड द सोल्जर्स नॉट टू अटैक द एनिमी। ठीक है, ऐसे तुम लोग इसको समझ लेना। अभी इसको भी उल्टा करके देख लेते हैं। द प्रिंसिपल सेड टू द प्यून नॉट टू रिंग द बेल। तो क्या नॉट टू तो हमने इनडायरेक्ट में लगाना है। प्रिंसिपल सेड टू द प्यून डोंट रिंग द बेल। तो क्या करेंगे? प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द प्यून नॉट टू रिंग द बेल। तो ये थोड़े थोड़े तुम अपने से लिख लेना, नॉट वाले, या थोड़े मैं तुमको जूम लेक्चर में लिखवाऊंगी। ठीक है, वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर and you can pause the video and then you can complete the whole thing. Okay, so rest of it we will do in the Zoom lecture.